Hello, dear students. Let us start now with functional components of the ecosystem. That is, what are food chains? खाना कैसे ट्रांसफर होता है? Food chain simply means how food is going to form a chain of transfer from one level to the other level. We are going to see these food chains and we are going to see how energy is going to flow. हम food दे रहे हैं, इसका मतलब हम energy दे रहे हैं. We are providing energy to the next trophic level. All right. So the abiotic and biotic components of an ecosystem are linked through the food chain with each other. And these are the functional properties of an ecosystem which make it dynamic. Dynamic means उसमें हमेशा activities चलती रहती हैं. It doesn't halt. एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि इकोसिस्टम में जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी, वो रेस्ट ले रही हैं. It is a continuous dynamic process. कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, बट वो चलता रहेगा. It's not going to halt. So that is why an ecosystem is a dynamic functional unit. So ये देखो, सोलर एनर्जी लाइट दे रहा है. इकोसिस्टम की किसी भी फूड चेन या किसी भी डायग्राम में यू विल ऑलवेज सी कि सनलाइट है, बिकॉज दैट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी. हमने डिस्कस किया है. सनलाइट से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स synthesizing in the presence of light. So sunlight is essential. ये प्लांट्स के लिए हमने देखा है कि डिकम्पोजर्स से उनको वापस न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोडक्शन के लिए. These plants will be consumed by herbivores. ओके, अब ये क्योंकि पहला वो है जो कंज्यूम करेगा इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हर्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलेंगे. ये हर्बीवोर को खाएगा एक कार्निवोर, तो ये कार्निवोर को हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे बिकॉज इट इज सेकेंड इन लाइन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर. एंड इस कार्निवोर को खाएगा एक और कार्निवोर विच इज अ टॉप कार्निवोर. इसको हम बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर बिकॉज दिस इज थर्ड इन लाइन. अब ये इसको एनर्जी देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है. सब एक दूसरे को खाना देते हैं और इन टर्न खुद भी किसी का खाना रहते हैं. ओके, एंड जब ये डेथ हो जाती है या प्लांट्स की या प्राइमरी कंज्यूमर की या सेकेंडरी कंज्यूमर की या टर्शरी कंज्यूमर की, they are going to be decomposed by the decomposers which feed on detritus or dead and decayed organic matter. We have seen this in detail. Now sun is the ultimate source of energy on this ecosystem. आपको ये याद रखना है कि 100% of solar energy जो है which falls on the surface of the earth, उसमें से only 50% is photosynthetically active radiation. That means only 50% can be used for the process of photosynthesis, and from this 50% also only 2 to 10% is captured and used by the plants. उस 50% में से भी plants can use only 2 to 10% of the photosynthetic active radiation, which is 50% of the total solar radiation. Very important MCQs, 50% is PAR, photosynthetically active radiation, and 2 to 10% is captured and used by the plants. So sun is the ultimate source of energy for all the ecosystems. Directly or indirectly, all the organisms are dependent on this form of energy, that is solar energy, and this energy is always going to be unidirectional. कोई भी वापस सन को ये एनर्जी रिटर्न नहीं कर सकता है. ये एनर्जी रोज मिलती है हमको. एवरी मॉर्निंग वी गेट दिस एनर्जी, वेदर मैन मेड इकोसिस्टम रहे या नेचुरल इकोसिस्टम रहे, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हर कोई यूज करेगा. ओके, एंड इट कैन नॉट बी रिटर्न बैक टू द सन. जितनी बचेगी हम वापस नहीं करते हैं. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. अब क्विकली देखते हैं. ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं. ऑटो बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. ओके, they are largely green plants and they convert inorganic materials in the presence of solar energy by the process of photosynthesis to form chemical energy, that is food. ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, एल्गीज हो सकते हैं.
herbivores, these animals which eat the plants directly, उनको herbivores बोलते हैं. ये vegetarians होते हैं, ये सिर्फ plants खाते हैं. Insects, grasshoppers, birds, rodents, ruminants, some mammals like sheep, cattle, goat, donkey, ये सब सिर्फ herbivores होते हैं. They eat only plants. Aquatic ecosystem में mollusks एग्जाम्पल है हर्बीवोर्स का, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. एंड ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर देयर फीडिंग, ट्रॉफ मीन्स फीडिंग. सो हर्बीवोर्स विल बी हेट्रोट्रॉफ्स. इन्हीं को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं बिकॉज after the producer these are the first consumers, so primary consumers. Then carnivores, they are secondary consumers. Okay, they will be feeding on the herbivores. So secondary consumers because they feed on the herbivores, and tertiary consumers if they feed on the carnivores. Carnivores दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो herbivores को खा रहे हैं और दूसरे जो carnivores को ही खा रहे हैं. So that ways they can be divided into primary carnivores and secondary carnivores. But primary carnivore secondary consumer होगा. समझ में आ रहा है? Primary carnivore secondary consumer होगा. Secondary carnivore tertiary consumer होगा. Okay? And tertiary carnivore quaternary consumer होगा. Because in line it is going to come fourth then. ये सब भी heterotrophs ही होंगे. Omnivores, vegetarian भी, non-vegetarian भी, animals that eat both plants and animals. Example है pig, bear, man and your famous tissue cockroach. Rather your favorite tissue cockroach. Alright, उसके अलावा होंगे decomposers. अब ये कुछ animals हैं जो food chain में बीच में से आ जाते हैं. मतलब वो carnivore को खाने के लिए भी present रहते हैं, वो grass को खाने के लिए भी present रहते हैं, या plant material खाने के लिए भी present रहते हैं. This interconnection, जो एक फूड चेन सिंपल चल रही है, एक लीनियर चल रही है, जो हमने डिस्कस की, उसमें कोई बीच में आके कोई और चीजें खाएगा तो एक इंटरकनेक्शन बन जाता है जिसको हम फूड वेब बोलते हैं. वी विल सी दिस इन डिटेल. डिकम्पोजर्स हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं. व्हाट इज द एक्शन? वो हेट्रोट्रॉप्स भी होंगे, वो सैप्रोट्रॉप्स भी होंगे. सो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फीडिंग, ये प्रोड्यूसर्स होंगे. हेट्रो मीन्स कैन नॉट सेल्फ फीड, they are dependent on the others, ये consumers होंगे. ये primary, secondary, tertiary, quaternary बहुत सारे हो सकते हैं depending on एक food chain कितनी लंबी है. Sapro means dead matter को खाते हैं. They feed on dead matter. ये detritivores होते हैं, ये decomposers होते हैं. We have seen about them in detail. Now trophic level. एक trophic level क्या होता है? Easiest definition में every organism occupies a place in the ecological community according to the source and method of obtaining food. वो कैसे खाना obtain करता है और किससे obtain करता है? एक तो source, दूसरा method of obtaining food. According to that, it is put on a trophic level. This is the trophic level of the organism. The amount of energy available decreases at each successive trophic level. तो producer एक trophic level है, प्राइमरी कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है, बिकॉज उनका सोर्स चेंज होगा, उनका मेथड ऑफ गेटिंग देयर फूड इज विल चेंज. एंड एज वी मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, द एनर्जी इज गोइंग टू रिड्यूस. हम जितना पास ऑन करेंगे वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे. एंड एनर्जी फ्लो विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल. हमको कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमेशा प्रोड्यूसर से फॉलो होगी कंज्यूमर्स को. एनर्जी फ्लो विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. न्यूट्रिएंट्स के लिए हम रिसाइकलिंग ये वर्ड यूज करते हैं, बट एनर्जी के लिए हम रिसाइकलिंग ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ फ्लो यूज कर सकते हैं. इट इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम अ हायर प्लेस, मीन्स वेयर इट इज हाई, टू अ प्लेस वेयर इट इज लो. सो ये हो गए ट्रॉफिक लेवल्स. ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है विच इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, आर प्लांट्स. देन प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया. टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया, या क्वाटरनरी ट्रॉफिक लेवल हो गया. ऑलराइट, सो सी द एग्जाम्पल. फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रीन ट्रीज, ये प्रोड्यूसर्स हैं. जूप्लैंक्टन्स, ग्रास हॉपर्स, काउ, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. Birds, fishes, wolves, ये secondary consumers हैं. Man and lion, these are the top carnivores.
or the tertiary consumers or the fourth trophic level. यहाँ पे आपको MCQs के लिए पक्का याद रखना है कि ये प्राइमरी है तो लेवल सेकेंड हो जाएगी, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर है तो लेवल थर्ड हो जाएगी, टर्शरी कंज्यूमर है मीन्स ट्रॉफिक लेवल हमेशा एक आगे चलेगी इनसे. ओके, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर. बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं ये टर्म्स को इंटरचेंज करके. अब मैं हर्बीवोर लिखूं या मैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल लिखूं या मैं प्राइमरी कंज्यूमर लिखूं, आई मीन टू से दिस ट्रॉफिक लेवल, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, चलो देखते हैं अभी कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं. नाउ दीज आर नॉट प्री डिटरमिन्ड कि ये ग्रास को खाने के लिए गोट आएगी, गोट को खाने के लिए फॉक्स आएगा, फॉक्स को खाने के लिए लायन आएगा. डिफरेंट इकोसिस्टम्स में these trophic levels will change depending on the species and organisms in that ecosystem. तो यहाँ पे प्लांट्स को एलिफेंट खा ले रहा है, हो गया ओनली these two. यहाँ पे प्लांट्स को डियर खा रहा है, डियर से टाइगर खा रहा है डियर को, तो ये 3 हो गए ट्रॉफिक लेवल्स. यहाँ पे ग्रासेस हैं, ग्रास हॉपर खा रहा है, फिर फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है. जितनी ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगी एनर्जी लॉस उतना होता जाएगा. टॉप मोस्ट एनिमल को एनर्जी कम मिलेगी जितनी ज्यादा एनर्जी एक से दूसरे को पास ऑन होगी. ये ग्रासेस है, रैबिट खा रहा है, इसको कैट खा रहा है, इसको टाइगर खा रहा है, तो यहाँ पे ये 4 लेवल्स हो गए. यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, स्मॉल फिशेस हैं एंड फिश ईटिंग बर्ड्स हैं. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल फूड चेन्स. ये लीनियर है, देखो एक लाइन में चलती हैं. प्लांट से डियर से टाइगर, ग्रासेस से ग्रासहॉपर से फ्रॉग से स्नेक से ईगल. बट यू हैव टू सी कि इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं. नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स चेंज हो जाएगा. इसमें ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल होगी. Whereas you can have a food chain which will have 4 trophic levels. You can have a food chain which will have 3 trophic levels, or you can also have a food chain which will have only 2 trophic levels. तो अभी आपको ये तो पक्का याद रखना है कि T1 पे प्रोड्यूसर्स रहेंगे, T1 is the first trophic level. T2 पे प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा, T3 पे सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा, T4 पे टर्शरी कंज्यूमर रहेगा. प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कार्निवोर होगा, टर्शरी कंज्यूमर मतलब सेकेंडरी कार्निवोर होगा. ये आता है एमसीक्यूज में. यू गिवन दिस ग्राफ एंड यू हैव टू राइट व्हाट इज T1, T2, T3 एंड T4. तो आपको वो ट्रॉफिक लेवल फॉलो करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट हैव द प्राइमरी कंज्यूमर डाउन एंड द हर्बीवोर अबव. सॉरी, यू कैन नॉट हैव द कार्निवोर डाउन एंड हर्बीवोर अबव, या सेकेंडरी कंज्यूमर नीचे और प्राइमरी कंज्यूमर ऊपर. So trophic level 1 will be of the producer, 2 of the primary consumer, 3 of the secondary consumer, 4 of the tertiary consumer, 5 of the quaternary consumer, if at all it is there. अब एक food chain क्या होता है? One animal feeds on something and in itself it is a feed for the other. मतलब एक एनिमल कुछ खाता है बट वो एनिमल खुद दूसरे बड़े एनिमल का खाना है, ऐसे करके एक चेन बनती है जो हमने अभी देखी. वन एनिमल फीड्स ऑन अ प्लांट और अनदर एनिमल एंड इज इटसेल्फ फूड फॉर अनदर एनिमल. सो डिपेंडेंसी ऑफ फूड रहती है फूड चेन में. एक ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया. ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. फ्रॉग को पाइथन खाता है, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया. पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? फ्रॉग को कौन खा रहा था? स्नेक खा रहा था, स्नेक को ईगल खा रहा था. इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम दिस फूड चेन इज गोइंग टू वेरी. मैंने पर्पसली यहाँ पे ये ईगल वाला एग्जाम्पल रखा है और यहाँ पे ये पाइथन वाला एग्जाम्पल रखा है. सो दिस कैन चेंज. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रॉग को ईगल ही खाएगी, फ्रॉग को स्नेक ही खाएगा और उसके ऊपर ईगल अगर रहेगी तो खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी. इट कैन एंड ओवर हियर ऑल्सो. तो सी अगेन ओवर हियर, दिस इज अ प्लांट, द माउस इज फीडिंग ऑन इट, snake is feeding on the mouse. Only 3 levels of trophic in a food chain. This is a plant, same type of plant,
or rather say same plant, different ecosystem में bird is feeding on it, snake is feeding on the bird, eagle is feeding on the snake. This is the same plant, goat is feeding on the grass and tiger is feeding on the goat. So that is how you have to understand the trophic levels in a food chain. देखो कौन को रैट खा रहा है, रैट को आउल खा रहा है. इसको हम बोलते हैं एक 3 linked फूड चेन. मतलब इसमें 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर. इट्स अ 3 linked फूड चेन. जहां पे 4 आ जाएंगे उसको बोलेंगे 4 linked फूड चेन बिकॉज देयर आर 4 ट्रॉफिक लेवल्स. 5 आ गए, it will be called 5 linked food chain because there are 5 trophic levels. So food chain देखो यहाँ से प्रोड्यूसर से ग्रासहॉपर से फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल. अब ये ईगल का डिकम्पोजिशन भी तो होगा. हमने डिस्कस किया है डिकम्पोजर्स का रोल. हमने डिस्कस किया है कि व्हेन these organisms will die, इनमें से कोई भी डाई करेगा तो एनर्जी डिकम्पोजर्स के पास आएगी. डिकम्पोजर्स आर गोइंग टू फीड ऑन दैट ऑर्गेनिक मैटर. तो जहां पे ये ग्रेजिंग फूड चेन्स, ये सारी जो फूड चेन्स थी जो ग्रासलैंड्स और प्लांट्स पे थी, इनको ग्रेजिंग फूड चेन्स बोलते हैं. ग्रेजिंग फूड चेन जहां पे डिकम्पोजर्स को इन्वॉल्व कर लेती हैं उनको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं. अब डेथ प्लांट की भी हो सकती है, प्राइमरी कंज्यूमर की भी हो सकती है, सेकेंडरी कंज्यूमर की भी हो सकती है, टर्शरी कंज्यूमर की भी हो सकती है. जब जब जो डेथ होगा वो आएगा डिकम्पोजर के पास टू फीड ऑन दिस. डिकम्पोजर इज गोइंग टू फीड ऑन द डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑल दीज लेवल्स. सो डेट्रिटस फूड चेन जहां पे भी ग्रेजिंग फूड चेन से कंबाइन होगी बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म से डेट्रिटस फूड चेन चालू होगी, वो मर्ज होगी एक ग्रेजिंग फूड चेन से. ओके, एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इज आइदर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर और इट रिमेन्स ट्रैप्ड इन द प्रोड्यूसर टिल इट डाइज. डेथ से डेट्रिटस फॉर्म होगा, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर. इट इज गोइंग टू बी detrivores are going to feed on this detritus and the detritus food chain is going to start. So अब देखो यहाँ पे, okay, I want to mention this कि decomposers पहले भी आ सकते हैं. Okay, ये प्लांट की डेथ हो गई, worm eats dead plant. हमने earthworms का रोल देखा है. डेड प्लांट का फ्रेगमेंटेशन करेगा, उसका डिकम्पोजिशन करेगा. Turtle is going to eat the worm. Then this turtle will be eaten by the eagle. So combination of a grazing food chain and a detritus food chain. देखो यहाँ पे grass है, mouse is the primary producer, snake the secondary producer, eagle the tertiary consumer, snake the secondary consumer. यहाँ से भी इनमें से किसी की डेथ हुई तो डिकम्पोजर्स को मिल जाएगा खाना. यहाँ से भी अगर डियर और डियर के बाद वुल्फ, इनमें से भी किसी की डेथ हुई तो डिकम्पोजर्स को खाना मिलेगा. सो ग्रेजिंग एंड डिकम्पोजिंग और द डेट्रिटस फूड चेन आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर. जहां पे भी डेथ होगी ऑर्गेनिज्म की, डेट्राइटिवोर्स विल कम इनटू रोल. तो ये डायग्राम इजी है बनाने के लिए आपके नोट्स के लिए. ओके, ये फूड चेन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन इन योर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स. अगर इकोलॉजी में से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फूड चेन के ऊपर, ग्रेजिंग फूड चेन के ऊपर, डेट्राइटस फूड चेन के ऊपर, ऑन फूड वेब्स ऑल्सो. सो ये इंपॉर्टेंट अच्छा डायग्राम है. यू कैन ड्रॉ इट विथ योर पेंसिल. अभी लेके बना लो. सन बनाओ, प्रोड्यूसर्स बनाओ, प्रोड्यूसर्स से जाएगा कंज्यूमर्स के पास, हीट लॉस होगा एनवायरमेंट में, बाकी एनर्जी ट्रांसफर होगा. कंज्यूमर से जाएगा डिकम्पोजर्स को, डिकम्पोजर्स से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल वापस मिलेगा प्रोड्यूसर्स को. यहाँ डेथ प्रोड्यूसर की भी हो सकती है, कंज्यूमर की भी हो सकती है. जो भी डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वो डिकम्पोजर्स अपना काम चालू करेंगे उसके ऊपर. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रेजिंग फूड चेन एंड अ डेट्राइटस फूड चेन. तो अब डिफरेंसेस देखते हैं. व्हाट इज अ ग्रेजिंग फूड चेन एंड व्हाट इज अ डेट्राइटस फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स एंड देन टू द कार्निवोर्स. डेट्राइटस फूड चेन में एनर्जी फ्लोज फ्रॉम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थ्रू डेट्राइटिवोर्स. यहाँ पे डेट्राइटिवोर्स जरूरी हैं जो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे.
and decomposers. उन्हीं को decomposers भी बोलते हैं. This begins with producers as the first trophic level. This begins with detritivores and decomposers as the first trophic level. Detritus food chain में decomposers first trophic level पे रहेंगे, whereas grazing food chain में producers first trophic पे रहेंगे. Okay? मीन्स ये फूड चेन स्टार्ट नहीं होगी जब तक डेथ नहीं होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, वेदर इट्स अ प्लांट और एन एनिमल. जब तक डेट्रिटस फॉर्म नहीं होगा, डेट्राइटस फूड चेन चालू नहीं होगी. सन एनर्जी इज फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड इट इज मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स. इसमें एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है, इज यूज्ड बाय द डिकम्पोजर्स एंड डेट्राइटिव्स. एंड ये रीयूज के लिए प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को. This supports detritus food chain and this supports grazing food chain. ये कैसे सपोर्ट करता है? ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है detritus food chain को. ये कैसे सपोर्ट करता है grazing food chain को? It gives back nutrients to the producers so that the grazing food chain can go on. So दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. Very important differences. ये लिख लो. आपके टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट वाइज नहीं दिए हुए हैं, जस्ट मेक अ नोट ऑफ देम बिकॉज इस पे एमसीक्यूज आते हैं. अब लेट अस सी एन एक्वेटिक फूड चेन. ओके, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से प्रोड्यूसर्स हैं. ज़ूप्लैंक्टॉन्स विल बी द ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमिंग दीज. देन स्मॉल फिशेस विल बी कंज्यूमिंग द ज़ूप्लैंक्टॉन्स. लार्वे विल बी कंज्यूमिंग. उसके बाद स्मॉल फिशेस विल बी कंज्यूमिंग द लार्वे. The large fishes will be consuming the small fishes. That is how an aquatic food chain works. देखो यहाँ पे. अब अगर ये large fishes में मैं include कर दूं कि mammals खाएंगे या even human beings जब fishing करके fish खाते हैं तो वो भी add हो जाएंगे यहाँ पे. Phytoplankton से zooplankton से small fishes, you can have the larvae here in between. Small fishes से larger fishes or bigger fishes and bigger fishes के ऊपर other mammals. So that is how एक trophic level बढ़ गई इस aquatic food chain में. So देखो इधर, sun से plants, plants से bugs, bugs से chicken को खाता है boy या man, alright. But this man can feed on these fruits of the plant also. So ये man omnivorous है. It feeds on the plant material also. It feeds on the consumers also. Or it feeds on the carnivores also, the lower level carnivores. Because of these omnivores, food chains आपस में mix हो जाती है. एक top carnivore is not dependent only on the secondary consumer or tertiary consumer for their food. वो producer भी खा सकता है. That is how they interlink with each other. Natural interconnections of food chain in nature form food web. Mostly omnivores के लिए बोल सकते हैं. It's an example. दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि one organism is not dependent on only one type of producer for its food. It can have a variety of producers जिसको वो खाता है. Alright, so जरूरी नहीं है कि एक producer ही हो. I will discuss this. And tertiary carnivores do not exclusively feed on secondary. वो प्राइमरी कार्निवोर्स पे भी फीड कर सकते हैं, वो प्रोड्यूसर्स पे भी फीड कर सकते हैं. तो स्पाइडर का जैसा एक वेब रहता है, यहाँ से यहाँ आपस में इंटरकनेक्शन, ये ऐसे टाइप का एक वेब रहता है. आई विल शो यू व्हाट अ फूड वेब इज. देखो ये ग्रास है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, इंसेक्ट भी खा सकता है, ये ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है. यहाँ से बर्ड खाएगी, बर्ड से बड़ी बर्ड खाएगी या ईगल खाएगी. दिस बिकम्स वन फूड चेन. इसी को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को ये वोल खाएगा, वोल को ये हॉक खाएगा, ये एक फूड चेन हो गई. यहाँ से रैबिट, रैबिट को फॉक्स खाएगी, ये एक फूड चेन हो गई. इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को फॉक्स खाएगा, ये एक फूड चेन हो गया. दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू मेक अ फूड वेब विच इज गोइंग टू बी कनेक्टेड. ओके, यहाँ से इंसेक्ट को ये बर्ड भी खा सकती है डायरेक्टली, ये फ्रॉग भी खा सकता है, ये वोल भी खा सकता है. मीन्स इट इज फूड टू ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स. देखो यहाँ पे फिर से सनलाइट है टू मेक द मैनग्रोव ग्रो. अब इसकी जब लीव्स गिरेगी, मैनग्रोव ट्री की जब लीव्स गिरेगी तो ये लिटर बनाएंगी. अब ये मरीन इकोसिस्टम में भी बनाएंगी, ये बाहर भी बना सकती हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. ओके, सो इन द मरीन इकोसिस्टम अगेन इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय द डिकम्पोजर्स. क्रैब्स खाएंगे, फिर सी बर्ड्स खाएंगे.
ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यहाँ पे क्रैब्स खाएंगे बाहर और ये बर्ड्स खाएगी. So it is interconnected. It forms a food web. Fishes can feed on these crabs also. Again, ये सारे producers हैं, corn, flowering plant, lavenders, mangoes. इनको different type of organisms खाएंगे, which will be fed by again different type of organisms. So ये अगर मैं food chain देखूं, so this will be first trophic level, second, third, fourth. यहाँ पे eagle will come in the fourth trophic level. But if I go to this food chain, corn से grasshopper से frog से eagle, फिर से fourth trophic level आ रहा है. First, second, third and fourth. I want to show you a trophic level जिससे eagle fifth level पे आएगा. Okay, see, corn से grasshopper से rat से wolf से eagle. So ये ईगल अब फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ गया. तो ट्रॉफिक लेवल एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म की फिक्स्ड रहेगी ऐसा नहीं है. ये लिख लो आपकी नोटबुक में. ये डायरेक्ट एमसीक्यू आता है. यू कैन नॉट से कि ईगल विल ऑलवेज बी ऑन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल और इट विल ऑलवेज बी ऑन द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. नो, ये मैंने आपको पहले सिंपल फूड चेन्स में भी दिखाया है. यहाँ पे देखो, इफ इट्स ऑब्टेनिंग इट्स फूड लाइक दिस, इट्स ऑन द फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल. एंड इफ इट इज ऑब्टेनिंग लाइक दिस, इट्स ऑन द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. It can also be on a third trophic level. So that is how एक food web interconnections रहेगा of different organisms, different ecosystem में कैसे behave कर रहे हैं. और nature में हमेशा ऐसे food webs ही available रहते हैं. Nature will not have single food chains. इसका मतलब क्या है? Nature will not have dependency on only one organism. ऐसा नहीं है कि eagle is dependent only on the wolf or it is dependent only on the thrush. It can directly feed on the frog also. So ये eagle इन्हीं चीजों पे dependent नहीं है. It can feed on the python also. So हर organism ने अपना बंदोबस्त करके रखा है या हिसाब किताब करके रखा है कि ये नहीं मिला तो ये चलेगा, ये नहीं मिला तो ये चलेगा. Everybody has made that kind of हिसाब किताब और बंदोबस्त. ओके, nobody will be dependent on only one plant or one consumer or one carnivore. Again over here, see the different food chains and see the interactions. See the intermingling. It can go this ways also, it can go this ways also. दिख रहा है? It can go this ways also, it can go this ways also, it can go this ways also. So ये intermingling of simple food chains जो हमने देखी is called a food web. Food chains will always be linear and simple. Linear means एक single line follow करेगी. Food web is going to be intermingling of these linear chains. देखो यहाँ पे फिर से. ओके, इजी टू अंडरस्टैंड फूड वेब्स हैं. आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रॉफिक लेवल बताओ किस पे है ऑर्गेनिज्म. जैसे अगर मैंने ये दिया आपको और ड्रैगन फ्लाई का ट्रॉफिक लेवल पूछे तो यू विल हैव टू कैलकुलेट ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन इट्स ऑन द फोर्थ लेवल. इफ आई गो फ्रॉम हियर, बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड ड्रैगन फ्लाई, इट कम्स ऑन द थर्ड, नो, अगेन ऑन द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. So that is how it moves. Okay? अगर यहाँ से देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ट्रॉफिक लेवल हो जाएगी. So ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा हर चीज में. ओके, ड्रैगन फ्लाई से फ्रॉग कंज्यूम करेगा उसको, इट विल नॉट कंज्यूम द फ्रॉग. तो ये वाला सिक्स्थ नहीं होगा उसका. अब यहाँ से अगर देखें तो ये स्पैरो है. स्पैरो से डायरेक्टली फॉक्स भी हो सकता है, स्पैरो से डायरेक्टली ये बर्ड भी हो सकती है, स्पैरो से डायरेक्टली ये स्नेक भी हो सकता है. ओके, सो इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब. ये सिंगल लीनियर पाथवे होगा, ये तो आपको समझ रहा है. ये मेड ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टिंग पाथवेज. This is isolated food chain decreases stability of ecological community. अगर एक ऑर्गेनिज्म एक ही पे डिपेंडेंट रहेगा और अगर वो एक आइसोलेट हो गया तो वो स्टेबिलिटी चली जाएगी वो इकोसिस्टम की. इसीलिए फूड वेब्स जरूरी है.
More complex food webs increase the stability. If one is not available, second is there. Second is not available, third is there. Ecological stability बनी रहती है. One individual occupies only one trophic level food chain में. हमने देखा है ग्रास से गोट से टाइगर, एक इंडिविजुअल एक ट्रॉफिक लेवल पे ही रहेगा. वेयर एज फूड वेब में अभी मैंने आपको बताया एक ईगल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड चेन और द पाथवे ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ फूड कैन ऑक्यूपाई मेनी ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड वेब. दिस इज लेस अडेप्टिव, दिस इज मोर अडेप्टिव इन नेचर. दोनों के कॉमन पॉइंट्स, दे बोथ रिप्रेजेंट हु ईट्स हु और who eats what, and 10% of energy passes from one trophic level to another. या वो फूड चेन हो या वो फूड वेब हो, एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे इज 10%. दिस इज गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ. So again, food chain की definition is defined as phenomena of transfer of energy through series of organisms on successive trophic levels. This is an interconnection of food chains. ये याद रखना है आपको. In food chain, usually member of high trophic level feeds upon single type of organism. इसमें it will be feeding on many organisms, multiple organisms. इसमें separate and isolated food chains increase the instability of ecosystem. जितनी आइसोलेटेड एक फूड चेन होगी इकोसिस्टम उतना इनस्टेबल होगा. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद दीज सेंटेंसेस. जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन चेन, इट कैन कंप्राइज ऑफ मेनी चेन्स. रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डिस्टर्ब, क्योंकि वो एक ही पे डिपेंडेंट है. यहां से कोई एक रिमूव भी हो गया तो दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे. इनको लिख लो आपके नोट्स में. फिर से यहाँ पे नेचर में ये स्ट्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स होगा. नंबर ऑफ पाथवेज इसमें एक ही होगा, इसमें बहुत सारे होंगे. एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स टोटल में अगर देखें तो इसमें few organisms will be involved in a food chain, whereas in a food web many organisms will be involved. So अगर ऐसा भी डायग्राम आपको दे दूं और बोलूं कि बाहर वाले को लेबल करो और अंदर वाले को लेबल करो, तो आपको ये फूड वेब ही लेबल करना है. This food web can have many food chains which are interconnecting with each other. सो फूड चेन छोटा रहेगा, फूड वेब बड़ा रहेगा. ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं वेयर दिस विल बी लेबल्ड एज ए, दिस विल बी लेबल्ड एज बी एंड यू विल बी आस्क्ड कि ए क्या होगा, बी क्या होगा. तो फूड वेब हमेशा बड़ा होगा, फूड चेन छोटी होगी. फूड वेब बहुत सारे फूड चेन से बन सकता है. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब एंड द ट्रॉफिक लेवल्स. अब ये जो मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ कि एनर्जी ट्रांसफर होगी वन ट्रॉफिक लेवल से अदर, 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी. प्रोड्यूसर के पास हमेशा ज्यादा एनर्जी रहेगी. जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी. सो लेट अस डिस्कस दिस एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो है ही. सन की एनर्जी नहीं रहेगी तो इकोसिस्टम चल ही नहीं सकेगा. The amount of energy available decreases at each successive trophic level. जैसे जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर जाएंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज. एनर्जी फ्लो विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल. ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा. ऊपर का कंज्यूमर नीचे के प्रोड्यूसर को एनर्जी वापस नहीं कर सकता. इट कैन नॉट बी बाय डायरेक्शनल. Transfer of energy follows 10% law given by Linderman. इसको याद रख लो. Transfer of energy will follow 10% law. This law was given by Linderman, very important MCQ, and it follows 10% law. हर लेवल पे 10% डिक्रीज होता जाएगा एनर्जी जो पास होगा. Hence the number of trophic levels in any food chain will be limited. जैसे जैसे एनर्जी खत्म होती जाएगी ट्रॉफिक लेवल आगे नहीं बढ़ सकता है, बिकॉज आगे पास ऑन करने के लिए कुछ एनर्जी नहीं रहेगा. जितने कम ट्रॉफिक लेवल्स रहेंगे एक फूड चेन में, मतलब फूड चेन जितनी छोटी रहेगी एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी ऊपर के कंज्यूमर्स के पास उस फूड चेन में. देखो यहाँ पे 10% एनर्जी यहाँ का ट्रांसफर होता है इधर.
इधर का 10% इधर, इधर का 10% इधर, इधर का 10% इधर, और कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता ऊपर, एक और ट्रॉफिक लेवल रहती तो इसका 10% इधर, मीन्स एनर्जी कितना कम होता जा रहा है एट ईच ट्रॉफिक लेवल। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमको यहाँ के ऊपर के ऑर्गेनिज्म को देने के लिए कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी। दिस इज द 10% लॉ। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब मैं डिस्कस करूंगी इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी विच शोज की एनर्जी लॉस होती जाती है, ये एक चीज तो बताता ही है, बट इट ऑल्सो टेल्स अस दैट इट फॉलोज द 10% लॉ। हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% रिडक्शन होता जाएगा। और बैलेंस इकोसिस्टम के लिए जरूरी है कि ये अपराइट पिरामिड बने, प्रोड्यूसर्स हमेशा ज्यादा हो, तभी हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर सकेंगे कंज्यूमर्स को। ये ट्रांसफर होगी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इवन द टर्शरी कंज्यूमर इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड, फॉर एनर्जी। एक बैलेंस इकोसिस्टम के लिए ये अपराइट पिरामिड बहुत जरूरी है। This I will discuss when I again discuss about ecological pyramids. All right, so this is all for today. This is a simple analogy एक food chain का, या बोलेंगे कि एक nature की एक sequence of steps का, which I like a lot. Life is like a camera. पहले focus करो, फिर capture करो, and then develop from the negatives. You cannot directly develop the negatives. अभी वो टाइम है नहीं जब कैमरा चलता था और फोटोज हार्ड कॉपीज डेवलप होते थे, बट यू ऑल हैव सीन इट व्हेन यू वर स्मॉल। यू कैन नॉट डायरेक्टली डेवलप द नेगेटिव जब तक आपने कैप्चर नहीं किया है, एंड ये नेगेटिव्स कोई काम के नहीं होंगे अगर ये कैप्चर फोकस्ड नहीं था। वन विल बी डिपेंडेंट ऑन द अदर। सिमिलरली फॉर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, focus, focus, focus on what you are doing. Focus on your studies. If you are reading something in a day, उसको पूरा focus करके पढ़ो, capture करो उसमें से सारे points, सारे MCQs. Only then you're going to develop a bright future for yourself. Okay, so all this is for today. I will see you tomorrow with the next lecture on ecological pyramids. Bye bye.